A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of National College of Physical Education Mardan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेजरमेंट एंड एवल्यूएशनल टेक्निक्स में हम आपको एक मरतबा फिर अपने इस ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपके एजुकेशन का काम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे तरीक़े से जारी होगा। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है और वो है द टेस्ट ब्लूप्रिंट। जी हाँ, द टेस्ट ब्लूप्रिंट, जिसका मतलब है आजमाइशों का खाका। इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ की जाती है कि a detailed written plan for a test that typically includes descriptions of the test's purpose or test's purpose and target audience, the content or performance areas it will cover, the types of items and number to be written for each content or performance area, their scoring, and other characteristics, the test administration method, and desired psychometric characteristics of the items and the test. स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक मरतबा फिर इसकी डिफिनीशन को रिपीट करता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा। A detailed written plan for a test that typically includes descriptions of the test's purpose and target audience. इसके साथ साथ इसमें यह बात भी शामिल है कि the content or performance areas it will cover, the types of items and number to be written for each content or performance area, their scoring and other characteristics, the test administration method, and desired psychometric characteristics of the items and the test. Some experts call it test specification, but test specification is defined as below. जो एक्सपर्ट्स ऑफ एजुकेशन इसको ये नाम देते हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशन के मुतालिक, तो इसमें फ़र्क है और जो फ़र्क है वो इन दोनों की डिफिनीशन से वाज़ेह होती है। टेस्ट स्पेसिफिकेशन की जो डिफिनीशन की जाती है वो कुछ यूँ है कि an overall outline that details the characteristics of a test. More specifically, it defines a test's format, the total number and proportion of test items from each content domain, the type of item formats to be used, how the items will be scored, the method of interpreting test scores, and the time limit, if applicable, for taking the test. अज़ीज़ तलबा किराम, टेस्ट स्पेसिफिकेशन की जो डिफिनीशन है इसको भी हम अहमियत के पेश नज़र एक मरतबा फिर आपके लिए दोहराते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप तवज्जो से सुन रहे होंगे। An overall outline that details the characteristics of a test. More specifically, it defines a test format, the total number and proportion of test items from each content domain, the type of item formats to be used, how the items will be scored, the method of interpreting test scores, and the time limit, if applicable, for taking the test. जी हाँ, तो अब इन दोनों के जो डिफिनीशन है इनसे
इन दोनों के आपस में जो फ़र्क है वो बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह होती है। आइए मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। Once you know the learning objectives and item types you want to include in your test, you should create a test blueprint. A test blueprint test specification consists of a matrix or chart representing the number of questions you want in your test within each topic and level of objective. The blueprint identifies the objectives and skills that are to be tested and the relative weight on the test given to each. तो अज़ीज़ तलबा किराम, इससे मज़ीद वजाहत हो जाती है और आगे इसी के बारे में कहते हैं कि द ब्लूप्रिंट कैन help you ensure that you are obtaining the desired coverage of topics and levels of objective. Once you create your test blueprint, you can begin writing your items. अब वजाहत के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट देते हैं ताकि आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाए। तो इस चार्ट की तरफ ज़रा आप देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये देते हैं कि 40 आइटम एग्ज़ाम, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव ए, ऑब्जेक्टिव बी, ऑब्जेक्टिव सी और ऑब्जेक्टिव डी, फिर नीचे आप देख सकते हैं, अब नीचे आप देख सकते हैं रिमेंबर, और इसमें उन्होंने पॉइंट दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव में 1 है और ऑब्जेक्टिव बी में कोई नहीं, सी में भी 1 है और डी में 1 है, तो ये 3 बनते हैं और परसेंटेज वाइज ये है 7.5%। इस तरह नीचे जो है अंडरस्टैंड है, इसमें 2 है ऑब्जेक्टिव ए, फिर 1 है बी और सी में भी 2 है और ऑब्जेक्टिव डी में भी 2 है, तो ये 7 है पॉइंट्स और ये 17.5 बनते हैं। थर्ड नंबर पे है अप्लाई फॉर ऑब्जेक्टिव ए, फॉर बी और ऑब्जेक्टिव सी में 3 है और डी में फिर 4 है, तो ये 15 बनते हैं और ये 37.5 है। इस तरीके से एनालाइज्ड है और इसके भी 3 है ए में और फिर बी में 2 है और फिर 3 है सी में और डी जो ऑब्जेक्टिव है इसमें 2 है, तो ये टोटल 10 है और ये 25% है। इस तरीके से 5 नंबर पर है इवेलुएट और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बी और डी में 1 है, तो ये 2% और ये 5% बनते हैं, 2 पॉइंट्स जो है ये ओवरऑल। और फिर आखिरी है क्रिएट, और क्रिएट में जो ऑब्जेक्टिव सी है उसमें 2 है और डी में 1 है, जबकि ए और बी ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं है, तो ये 3 बनते हैं और ये 7.5 है। तो इस तरीके से आप टोटल में देख सकते हैं कि ये है 40 और ये परसेंटेज वाइज जो है 100 में यानी 100 में 40% बनते हैं। तो once you can create your blueprint, you should write your items to match the level of objective within each topic area. तो ये इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि इसकी अफादियत क्या है, अहमियत क्या है। अब जो है इसके साथ साथ कुछ बात हो जाए मैचिंग टेस्ट आइटम्स टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप सुन लीजिए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेस्ट आइटम्स। नो टीचर कैन होप टू सेट सुटेबल क्वेश्चन विदाउट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, इसके बग़ैर कोई जो मुअल्लिम है वो इसकी उम्मीद नहीं रख सकता कि वो सूटेबल क्वेश्चन यानी वो तरतीब और हर लिहाज से दुरुस्त सवालात को मद्देनज़र रख के। The means to determine the extent to which the instruction has been effective is called evaluation. These definitions show that there exists a close relationship between objectives and evaluation. ये बहुत अहम टॉपिक है और बहुत अहम सेंटेंसेस है, ये दोनों दोबारा सुन लीजिए कि the means to determine the extent to which
the instruction has been effective is called evaluation. These definitions show that there exists a close relationship between objectives and evaluation. Similarly, we see that the main purpose of classroom instruction is to help pupils or students or learners achieve the intended learning outcomes. जी हाँ, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि these outcomes should include all desired changes in the emotions, intellect एंड फिज़िक ऑफ द स्टूडेंट और लर्नर। यानी इसमें जो आउटकम्स है, जो हमारा राहत है, जो हमारे नताइज है, जो हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें तमाम बातें शामिल होती है, चाहे वो इमोशंस हो, जज्बाती हो, इंटेलेक्चुअल हो यानी जहनी सतह की हो, या फ़िज़िकल हो, फ़िज़िक के लिहाज से हो। Again, this shows that instructions and evaluation are also closely related. जी हाँ, जो instructions है और जो evaluation यानी जायज़ा है, ये आपस में इंतहाई जो है एक दूसरे के साथ related है। The intended learning outcomes are established by the instructional objectives. The desired changes in student or learner are brought about by the planned learning objectives, and the learner or student learning progress is periodically evaluated by tests and other evaluation devices. तो स्टूडेंट्स, अब आखिर में ये बात भी जान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, द टीचर इज सपोज टू कीप इन व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स which the student have to achieve through teaching that course. It is becoming a practice to give an outline of objective before describing the actual syllabus. जी हाँ, एक एक्चुअल जो सिलेबस है, जो निसाब है, उससे पहले जो डिज़ाइन आप करते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो मकासद थे, अगर वो सामने ना हो तो फिर पूरा जो सिस्टम है लर्निंग का, तो वो बेसलेस बन जाता है, फिर उसके कोई महासिल नहीं होते। The objectives should be stated as specifically as possible so that to be helpful in teaching and testing. हाँ, ये बात भी बहुत अहम है कि अगर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं होंगी, अगर वो ख़ास नहीं होंगे और एम्बिग्विटी उसमें होगी, तो फिर भी आपके जो हासिलात ताल्लुम है यानी लर्निंग आउटकम्स जो है, फिर वो भी आप पूरे तौर पर अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो टीचिंग के हवाले से हो, मेथडोलॉजी के हवाले से हो, या टेस्टिंग के हवाले से हो। If the objectives are properly defined, the ground for writing good test item is prepared. So, dear student, in short, instructions, objectives and evaluation are closely related and interdependent. और हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि इंटरडिपेंडेंट का मतलब ही यही है कि ये आपस में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा मुनहसर होते हैं और इसके बग़ैर दूसरा जो है वो पूरे तौर पर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के लेक्चर में ये दोनों जो सब टॉपिक्स है, द टेस्ट ब्लूप्रिंट और दूसरा जो है मैचिंग टेस्ट आइटम्स टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।